Good morning, students. In today's video, we'll discuss the next topic, that is electric dipole. What is this electric dipole? This electric dipole consists of two equal and opposite charges which are separated by a certain distance. This is an electric dipole. It is supposed to be made up of two charges, minus q and plus q. These are present at the point A and B. And what is the separation between them? It is 2a. Right, and OB considered its center. So what is this distance A? This is also A. And each dipole, what is the net charge on each dipole? Net charge on each dipole is minus q plus q, that is equal to 0. Net charge on the dipole is 0. Right, student? Now dipole strength is find out. Dipole strength can be calculated by dipole moment. What is this dipole moment? This is represented by P. It is a vector quantity and its direction is from minus q to plus q. Its direction is from minus q to plus q. If I will show here, this is the direction of dipole moment. It is from minus q to plus q. And what is the magnitude of this charge? Magnitude of this dipole moment? That is mod of this. This is equal to P. This is either charge multiplied by separation between the two charges. This is either charge is Q into 2A. So this is the dipole moment. What is its SI unit? SI unit is coulomb meter. SI unit is coulomb meter. Right? Right. अब आप ये कहेंगे now, what is the significance of this dipole? There are two types of molecule. One is polar molecule and second is non-polar molecule. There are two types of molecule, polar molecules and second is non-polar molecules. Right? In polar molecules, center of positive charge of the atom is separated from the center of negative charge. Students, in an atom or molecule, there is a center of positive charge and there is a center of negative charge. So if this center of positive charge and negative charges are separated by certain distance, you can say center of positive charge separated by center of negative charge. It means their dipole moment is not equal to 0. For example, water, right? This is water, and you can take another alcohol. These are the example of polar molecules. And in non-polar molecules, you can say the center of positive charge coincide with the center of negative charge. Center of positive and negative charge coincide. और अगर coincide करते हैं तो dipole moment किसके equal होगी? 0. Why? Because the separation between them is 0. And examples are CO2 and this is CH4. Carbon dioxide and methane. These are the examples of non-polar molecule. और polar में हमने क्या दिया? Water और alcohol. तो यहाँ पर it possess finite dipole moment और यहाँ पर dipole moment क्या है? Dipole moment क्या है यहाँ? 0. Because what is the separation? Separation is 0. Now we have to discuss. So this is all about electric dipole introduction. Now the next is electric field due to a dipole on its axial line. Electric field due to a dipole on its axial line. What is this axial line? क्या होती है ये axial line? On its axial line, this is a dipole having two charges minus q and plus q, and
Axial line is a line which is lying on the line joining the center of the two charges. जो line इसके center से जा रही है that is said to be axial line. What is this separation? This is 2a. And we want to calculate, this is the center, this is A and this is A. We want to calculate the electric field intensity at this point P. आपको क्या निकालनी है? Electric field intensity at this point P, and this point P is at a distance r from the center. कितने distance पे ये? r distance पे. So what is the electric field at this point P that we have to find out? Electric field, to find this we consider a test charge at this point. Let E1 be the electric field at point P, E1 be the electric field at point P due to minus Q charge. तो क्या होगा ये E1 is equal to KQ divided by AP square, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में. नाउ व्हाट इज दिस A to P डिस्टेंस? दिस इज R प्लस A. ठीक है, और अब इसकी डायरेक्शन असाइन करें. नेगेटिव चार्ज इस Q नोट को क्या करेगा? अट्रैक्ट. E1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस. डायरेक्शन इज अलोंग P2A, राइट. इसको हम पहले वैल्यू लिख लेते हैं. KQ डिवाइड बाय दिस इज R प्लस A होल स्क्वायर. ये यहाँ से इस तरफ होगी. इट इज़ एक्टिंग अलोंग दिस AP डिस्टेंस इज R प्लस A. डायरेक्शन इज अलोंग P2A. डायरेक्शन इज अलोंग P2A. नाउ E2 इज द, जैसे आपने E1 लिखा, E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज. ड्यू टू प्लस Q. अब प्लस Q की वजह से ये क्या होगा? ये Q प्लस Q इसको क्या करेगा? यहाँ से रिपेल. सो E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस. तो अब E2 क्या होगा? इट रिपेल इट. तो E2 इज KQ डिवाइड बाय BP स्क्वायर. KQ डिवाइड बाय BP स्क्वायर. व्हाट इज दिस BP? दिस BP इज OP माइनस OB. ठीक है, दिस इज R माइनस A होल स्क्वायर. एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन? इसकी डायरेक्शन को हम क्या करते हैं? X मान लेते हैं. व्हाट इज दिस? इट इज अलोंग PX. डायरेक्शन इज अलोंग P2X. डायरेक्शन इज अलोंग P2X. तो अब बताइए एट दिस पॉइंट P विच फील्ड इज मोर, E1 और E2? ऑटोमेटिकली E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि पॉइंट E2 इज ग्रेटर देन E1, क्योंकि पॉइंट P किस चार्ज के क्लोज है? Q के क्लोज है. तो फील्ड इज मोर ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज. व्हाट इज द नेट फील्ड? नेट फील्ड इज E इज इक्वल टू E2 माइनस E1. E2 माइनस E1. अब E इज इक्वल टू E2 माइनस E1 क्या होगा? E2 इज KQ डिवाइड बाय R माइनस A होल स्क्वायर माइनस ऑफ KQ डिवाइड बाय R प्लस A होल स्क्वायर. तो अब आप KQ कॉमन ले लीजिए और ये एलसीएम ले लेते हैं. R माइनस A होल स्क्वायर, R प्लस A होल स्क्वायर. तो आपके पास ये क्या आ जाएगा? दिस इज E इक्वल टू R प्लस A होल स्क्वायर यहाँ आ गया, माइनस ऑफ R माइनस A होल स्क्वायर. ये A माइनस B, A प्लस B. तो E आ गया आपके पास. E इज KQ, यहाँ आप लगाएंगे A माइनस B, A प्लस B. दिस इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. इसका आप स्क्वायर खोलिए. R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR. इसका माइनस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर प्लस 2AR, राइट. ये आपका हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट. तो ये क्या आ जाएगा? KQ 4AR डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं? Q इंटू 2A. KQ इंटू 2A इंटू 2R. इसको स्प्लिट करके कर दिया आपने 4 को 2A इंटू 2R. दिस इज R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. इसकी डाइपोल मोमेंट क्या होगी? डाइपोल की P इक्वल टू Q इंटू 2A होता है. आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है. तो E क्या आ गया? K इंटू P इंटू 2R डिवाइड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज, एंड इट्स डायरेक्शन इज अलोंग P2X.
एंड इट्स डायरेक्शन इज अलॉन्ग पी टू एक्स। ये हमने किया था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बिकॉज E2 इज ग्रेटर देन E1, सो डायरेक्शन इज अलॉन्ग पी टू एक्स। सो द फॉर्मूला इज E इज इक्वल टू K2PR डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। डायरेक्शन इज अलॉन्ग पी टू एक्स। अब हम इसमें करेंगे एक शॉर्ट डाइपोल, एक स्पेशल केस करना है स्टूडेंट। अगर मैं वो यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, दिस इज अ स्पेशल केस। अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, E इज इक्वल टू K2PR डिवाइड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। फॉर शॉर्ट डाइपोल, स्पेशल केस फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल शॉर्ट है, इसका मतलब उसकी लेंथ जो है, ए लेंथ इज़ वेरी स्मॉल, इसकी लेंथ स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू द डिस्टेंस आर। तो ए इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू डिस्टेंस आर। तो यहाँ से ई कितना आ जाएगा, ई इज़ इक्वल टू 2KPR। तो हम ए को निगलेक्ट कर देंगे इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दिस इज ए, सॉरी, R⁴, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया E इज इक्वल टू 2KP divided by RQ. This is the electric field intensity on axial line. E axial is 2KP divided by RQ, and it is very important, right? So this is the electric field due to a dipole on axial line. Generally हम ये short dipole का ही case करते हैं. Now the next is electric field intensity due to a dipole on its equatorial line. अब हम कौन सा करेंगे, electric field due to a dipole on its equatorial line. अब ये equatorial line क्या होती है, any line passing through the axis and perpendicular to the center of the dipole. अगर हम ये कहें कि माइनस क्यू और ये प्लस क्यू आपका डाइपोल है, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट ओ, ये टोटल दिस डिस्टेंस इज 2A। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए और ये ए, एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट पी। ये पॉइंट पी क्या है, perpendicular to this axial line and passing through the center of the line joining it. At this point P, you can consider a test charge. Now this minus Q charge attract it, right? So E1 is the electric field intensity due to this minus Q charge at this point P. ये plus Q इसको क्या करेगा, यहाँ से repel. So E2 is the electric field at this point. तो अब हम लिखते हैं, if this distance is A and this is R, तो ये distance कितना हो गया, √R² प्लस A², ये भी कितना हो गया, √R² प्लस A²। तो अब हम लिखेंगे E1 is the electric field at point P due to minus Q। तो E1 क्या होगा, दिस इज KQ बाय AP², और AP क्या है यहाँ पर, अंडर द रूट ऑफ R² प्लस A², तो ये जाएगा R² प्लस A², एंड डायरेक्शन इज अलॉन्ग P2A, डायरेक्शन इज अलॉन्ग PA, डायरेक्शन इज अलॉन्ग PA। अब E2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो E2 कितना आ जाएगा, दिस इज KQ डिवाइड बाय BP², और BP कितना होगा, अगेन R² प्लस A² रूट, एंड डायरेक्शन इज B2P, डायरेक्शन इज B2P, ये अवे जा रहा है, ठीक है। अब स्टूडेंट E1 और E2 का मैग्नीट्यूड देखो सेम है, E1 इज इक्वल टू E2। अब हम क्या करेंगे, लेट अस सपोज इट मेक एन एंगल थीटा हेयर। नाउ यू हैव टू ड्रॉ अ पैरेलल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज PX, दिस इज PX डैश। अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, इफ़ दिस एंगल इज थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा, ये भी क्या होगा, थीटा। अब आप रिजॉल्व करेंगे E1 को, E1 कहाँ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो E1 का यहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, E1 cos थीटा, और इधर कौन सा आएगा वर्टिकल कॉम्पोनेंट, E1 sin थीटा। ऐसे E2 का यहाँ कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा, E2 cos थीटा, और इधर कौन सा आएगा, E2 sin थीटा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा क्या होंगे, दे कैंसिल आउट द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। E1 sin थीटा and E2 sin theta
cancel out each other. They cancel out the effect of each other. So total electric field is E1 cos theta plus E2 cos theta. ये along कहाँ है, P2 x डैश. तो हम इसको E1 इक्वल टू E2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे 2E1 cos थीटा, राइट. अब E1 और E2 की वैल्यू सेम है. E1 क्या है आपके पास, 2KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे कॉस थीटा की वैल्यू, और कॉस थीटा हम इस ट्राइंगल से लेंगे, इन ट्राइंगल AOP. AOP में कॉस थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. इन ट्राइंगल AOP cos theta इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज. तो ये क्या आता है, दिस इज 2KQ डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास E इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2. दिस इज PK आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2. और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग P2 x डैश. डायरेक्शन इज अलॉन्ग P2 x डैश, राइट, अपोजिट टू द डाइपोल मोमेंट. अब हम इसमें डिस्कस करेंगे फॉर शॉर्ट डाइपोल. फॉर शॉर्ट डाइपोल स्पेशल केस, इफ डाइपोल is short, this means R is A is very small as compared to R. तो आप इसको निगलेक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू P इंटू के. A को निगलेक्ट करेंगे, दिस इज R क्यूब, दिस इज KP डिवाइड बाय R क्यूब. और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इज अलॉन्ग PX डैश. स्टूडेंट ये PX डैश क्या है, देखो PX डैश इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन एंड इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. इसके अपोजिट है ये डाइपोल मोमेंट के. तो अगर हम ये E इक्वेटोरियल हमने निकाल लिया फॉर शॉर्ट डाइपोल के लिए, E इक्वेटोरियल, राइट. और अगर हमको कहा जाए फाइंड द रेशो ऑफ E एक्सियल टू E इक्वेटोरियल, E एक्सियल टू E इक्वेटोरियल का रेशो निकालिए. तो फॉर शॉर्ट डाइपोल इट इज़ 2KP बाय आर क्यूब डिवाइड बाय KP बाय आर क्यूब. तो कितना हो जाएगा, E एक्सियल टू E इक्वेटोरियल इट इज़ इक्वल टू 2:1. और अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें, एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट है, और यहाँ क्या है, ये डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी P. तो E एक्सियल और E इक्वेटोरियल की डायरेक्शंस क्या होंगी, देयर इज़ अ एंगल ऑफ 180 डिग्री बिटवीन E axial and E equatorial, right. This is very important concept, so you can easily see in the next video I will discuss its numerical. Thank you.